جیسے آپ نے کہا نا کہ اس وقت حالات صحیح نہیں تھے. ہمیشہ میرا اوپینین ہے کہ حالات صحیح نہ ہونا تو آپ کو کوئی بزنس کرنا چاہیے اور اسی بزنس میں آپ کو چانس ملتا ہے. انکلوڈنگ گولڈ مائن لینڈ آف 1329 ایکڑ کہ اس باؤنڈری وال بنانے میں بھی ہمیں کیا کیا تکلیفیں ہوئی ہے، مگر اللہ کی مہربانی سے ہم نے ہمت نہیں ہاری. اچھا سر، ایک چھوٹا سا واقعہ میں یہاں شیئر کرنا چاہوں گا. جب آپ کا یہ پروجیکٹ لانچ ہوا تھا تو میں بھی خود آیا تھا. تو جس روڈ سے ہم آ رہے ہیں اس روڈ پہ ہم سے بھتہ لیا گیا تھا. اس پروجیکٹ کے 3 اسپانسر ہیں، جیسے غنی عثمان، عقیل ڈیڈی صاحب اور عارف حبیب صاحب. ماشاء اللہ کی مہربانی سے پورے کراچی میں نہیں پورے پاکستان میں آپ سمجھ رہے کہ وزیر داخلہ یا رینجرز ہو یا جو بھی لوگ کرتا دھتا تھے ان سے کوآپریشن کر کے ہم اس ایریا میں ہم نے جو بھی پرابلمس تھے ان کو مل جل کے ہم نے حل کروائے. اچھا سر، اس وقت جن لوگوں نے یہاں پہ انویسٹ کیا تھا نئے نازموات کے اندر، تو انہوں نے 12 سال کے اندر کیا کچھ حاصل کیا ہے؟ کہ اس زمانے میں ہم نے جو پرائز دی ہے وہ سمجھ لو کہ آج کی پرائز سے سمجھ لو کہ وہ 700 گنا کم ہے. مگر بعد میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کی مہربانی سے یہاں ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ رہتے ہیں، ماشاءاللہ A1 لوگ رہتے ہیں. کرکٹ گراؤنڈ بنائے تو فرسٹلی ہم نے کرکٹ گراؤنڈ بنایا. اس میں اللہ کی مہربانی سے ہم نے پوری پاکستان کی ٹیموں کو یہاں بلایا اور ان کو میچ کھلائے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہمارے پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے ماشاءاللہ کہ یہ جو مسجد ہم نے بنائی ہے اللہ کی مہربانی سے اس مسجد میں ایک ساتھ 10,000 نمازیوں کی نماز پڑھنے کی گنجائش. اچھا سر، یہ دیکھا گیا ہے کہ 2 سال پہلے جو بارشیں ہوئی تھیں اور وہ بڑی ریکارڈ بارشیں تھیں، تو اس وقت یہاں پہ جو رہائشی ہیں ان کو بڑی تکلیف فیس کرنی پڑی تھی کہ پانی گھروں تک میں بھر گیا تھا. اچھا سر، اب یہ بتائیں، جیسے ابھی ہم آ رہے تھے نیا نازم آباد کی طرف تو رستے میں فلائی اوور کا کام ہم نے دیکھا ہے کہ ہو رہا ہے. آپ کا پروجیکٹ کافی ڈیو تھا یہ فلائی اوور جو کہ اب سٹارٹ ہوا ہے، تو اس کا کیا امپیکٹ آئے گا یہاں کے الاٹیز پہ اور فیوچر؟ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو ZM مارکیٹنگ چینل. اچھا جی، آج ہم موجود ہیں نئے نازموات میں. نیا نازموات کیا ہے، کیسا پروجیکٹ ہے؟ یہ صرف کراچی نہیں پاکستان بلکہ پاکستانی جتنے بھی دنیا میں مقیم ہے جگہ جگہ تو وہ سب جانتے ہیں کہ نیا نازموات کس قسم کا پروجیکٹ ہے. ہم جو موجود ہیں آج ہیں نئے نازموات کے اسپانسر پارٹنر حاجی عبدالغنی صاحب کے ساتھ، اور یہ بھی ان کی شخصیت جو ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، لیکن ہم چاہیں گے کہ ان کا انٹروڈکشن ایک پراپر وے میں آپ کو دیں. تو اس کے لیے زویب بھائی. اچھا جی، بہت سارے لوگ تو واقف ہی ہوں گے حاجی صاحب کی شخصیت سے اور بہت نمایاں پرومیننٹ شخصیت ہیں، لیکن تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا. 1962 میں انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا حبیب بینک کے ساتھ. حبیب بینک میں یہ 20 سال کام کرتے رہے، اس کو ریپرزینٹ کرتے رہے. اس کے بعد انہوں نے اسٹاک ایکسچینج جوائن کیا 1984 میں، اور ان کے پاس یہ ٹائٹل موجود ہے کہ یہ ینگسٹ نائب صدر تھے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے. آل رائٹ، اس کے بعد انہوں نے اپنی سروسز دینے کے بعد پھر انہوں نے اپنے بزنس کی طرف آئے. بیک ان 2010 جب حکومت پاکستان نے جاویدہ کارپوریشن کو سیل آؤٹ کرنے کا آکشن کیا تو اس کے اندر ہائیسٹ بیڈر جو تھے وہ حاجی صاحب تھے، جنہوں نے آکشن میں پارٹیسپیٹ کیا. اور اس میں ان کے جو پارٹنرز تھے ان کے ساتھ عارف حبیب صاحب اور عقیل کریم ڈیڈی صاحب ان کے پارٹنرز ہیں، جو کہ خود ایک بہت بڑا نام ہے، کسی تعارف کا محتاج نہیں. اچھا سر، ویسے تو سب جانتے ہی ہیں کہ یہ 2010 میں نئے نازموات کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور یہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ اس وقت جو حالات تھے بہت مشکل ایک فیصلہ آپ لوگوں نے اس ٹائم پہ کیا تھا جب آپ نے یہ پروجیکٹ اسٹارٹ کیا تھا، اور اس میں میرے خیال سے آپ لوگوں نے بکنگ پلاٹس کی اور بنگلوز کی اسٹارٹ کری تھی. تو سر اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جیسے آپ نے کہا نا کہ اس وقت حالات صحیح نہیں تھے. ہمیشہ میرا اوپینین ہے کہ حالات صحیح نہ ہونا تو آپ کو کوئی بزنس کرنا چاہیے اور اسی بزنس میں آپ کو چانس ملتا ہے. اب 2010 میں ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان پرائیویٹائزیشن کمیشن سے گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک ایڈ دی کہ یہ ہمارے پاس جو سیمنٹ فیکٹری ہے جس کا نام ہے جاویدان اسٹیٹ سیمنٹ، وہ اسٹیٹ سیمنٹ کو ہم بیچ رہے ہیں پبلک میں، اور انہوں نے آکشن کی ایک ایڈورٹائز دی. اس ایڈورٹائز میں جن کو بھی انٹرسٹ لینا تھا پورے پاکستان کے لیے تھی، تو ہم نے اس ایڈورٹائز میں انٹرسٹ لیا اور اس میں اسلام آباد میں آکشن ہوا. اس وقت کے ہمارے پرائیویٹائزیشن کمیشن کے چیئرمین تھے عبدالحفیظ شیخ صاحب، بعد میں جو فائنانس منسٹر بھی بنے.
उस साल में हमने इस प्रोजेक्ट में हमें फर्स्ट बिड आई और फिर कैबिनेट कमेटी ने वो कंडीशन थी कि इसकी पीसी की बोर्ड पहले अप्रूव करेगी, फिर पाकिस्तान की कैबिनेट कमेटी अप्रूव करेगी। जब कैबिनेट कमेटी ने उसको अप्रूव किया और उसके बाद हमने पीसी को वो अमाउंट जो भरी जिसमें हमने ये प्रोजेक्ट लिया था। इसके बाद हमने 2012 में इस जगह को डेवलप किया। ये सेल ऑफिस जो आप देख रहे हैं वो सेल ऑफिस बनाई और 2012 में हमने 3000 प्लॉट और 560 घर का पब्लिक में ऑफ़र किया और अल्लाह की मेहरबानी से वो 3000 प्लॉट के 5000 या 4500 लोगों ने इंटरेस्ट लिया और उसने हमने बैलेटिंग की। वो प्लॉट उस वक्त थे ए ब्लॉक, सी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक और बी ब्लॉक में 560 घर थे। तो अल्लाह की मेहरबानी से पहले साल तो हमें बुकिंग भी मिल गई। फिर इसके बाद लोगों ने 2012 के बाद आस्ते आस्ते किस्तें भरते रहे। 5 साल की किस्तें थी, कुछ लोग डिफ़ॉल्ट भी हुए मगर बाद में वो सब लोग रिकवर हो गए और अल्लाह की मेहरबानी से ये प्रोजेक्ट डे टू डे आगे बढ़ता गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सर, ये तो आपने बताया हमें बुकिंग के हवाले से जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, तो सर ये जैसे मैं आया हूँ तो बड़ा ज़बरदस्त लैंडस्केप है। जब आप नया नाज़िमाबाद में एंटर होते हैं तो ये कितना बड़ा एरिया है नया नाज़िमाबाद का जहाँ पे ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और अभी ग्रो हो रहा है? देखिए, मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो ऑक्शन का जो अनाउंसमेंट किया था ना, उसमें क्लियर कट लिखा था कि इंक्लूडिंग गोल्ड माइन लैंड ऑफ 1329 एकर्स। ओह माशाल्लाह। अच्छा, वैसे सर ये जो प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया जिस टाइम पे, तो आपने इसकी जो बाउंड्री है, क्योंकि उस वक्त सिक्योरिटी के बहुत इश्यूज़ थे, तो क्या आपने इसको मुकम्मल बाउंड्री करके गेटेड करके और सिक्योर करके फिर आप लोगों ने इसको जो है वो सेल करना शुरू किया और बुकिंग शुरू करी, या आपने सिर्फ जब सिर्फ ज़मीन थी तो उसी वक्त आप लोगों ने बुकिंग शुरू कर दी थी? नहीं, हमने ये जो इस प्रोजेक्ट को पहले हमने डेवलप किया, हमने इसकी रोड्स बनाई, बुकिंग ऑफिस बनाई और उसी ज़माने में हमने बाउंड्री वाल बनाई। और उस बाउंड्री वाल का मैं आप जिक्र नहीं करता हूँ कि उस बाउंड्री वाल बनाने में भी हमें क्या क्या तकलीफ़ें हुई है। हमने बहुत ही तकलीफ़ें बर्दाश्त की मगर अल्लाह की मेहरबानी से हमने हिम्मत नहीं हारी। माशाल्लाह। सही। अच्छा सर, एक छोटा सा वाक़या मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा। जब आपका ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो मैं भी खुद आया था अपने एक दोस्त के साथ। तो जिस रोड से हम आ रहे हैं इस रोड पे हमसे भत्ता लिया गया था। देखिए, आपने जब पहले ही कह दिया कि इस एरिया में बहुत ही मुश्किल काम था, तो माशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से हम जो इस प्रोजेक्ट के 3 स्पॉन्सर हैं, जैसे गनी उस्मान, अकील डेडी साहब और आरिफ हबीब साहब, माशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से पूरे कराची में नहीं पूरे पाकिस्तान में आप समझ रहे कि वज़ीर दाखिला या रेंजर्स हो या जो भी लोग करता धरता थे उनसे कोऑपरेशन करके हम इस एरिया में हमने जो भी प्रॉब्लम्स थे उनको मिलजुल के हमने हल करवाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, एंड वी कैन विटनेस दैट माशाल्लाह। आज जितने सुकून से हम लोग यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, और मेरे ख्याल से यहाँ के लोगों का भी हमने जाना है, जो आपके जैसे रिलेटिव्स यहाँ रहते हैं, जवाद भाई के भी रहते हैं, तो उनसे जो फीडबैक मिला है हमें, तो माशाल्लाह इट्स वंडरफुल। इनसाइड की सिक्योरिटी बड़ी अच्छी है। अच्छा सर, उस वक्त जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था नया नाज़िमाबाद के अंदर, तो उन्होंने 12 साल के अंदर क्या कुछ हासिल किया है? क्या उनको इनकरेजमेंट मिली? क्या उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी उसके अंदर इंक्रीमेंट्स आए? और आज किस पोजीशन में लोग आके खड़े हुए? और आप लोगों को मैंने ज़्यादातर देखा है, जिन लोगों से मेरी बातचीत यहाँ पे हुई है नए नाज़िमाबाद के, जो वो लोग हैं जो स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ जुड़े थे, तो बड़ी दुआएं देते हैं आप लोगों को, बड़ा जो है वो करते हैं कि दिल से दुआएं देते हैं कि इन लोगों ने हमें बड़ा सपोर्ट किया इनिशियली। देखिए, मैंने आपको बताया कि पहले हमने 3000 फ्लैट और 560 घर का वो किया और उस वक्त हमने 120 गज़ का जो प्लॉट था ना, वो कैश पेमेंट पे हमने 6 लाख में ऑफ़र किया था और किस्तों की पेमेंट पे 7.5 लाख पे 5 साल की किस्तों पे 7.5 लाख में ऑफ़र किया था। इस तरह 160 गज़ के प्लॉट थे और 240 गज़ के थे। उस ज़माने में 3 कैटेगरी थी, 120, 160 और 240। और जो 560 घर थे उसमें 120 गज़ का घर सिंगल स्टोरी था, डबल स्टोरी था, 160 का भी इस तरह सिंगल डबल स्टोरी था और 240 का भी सिंगल एंड डबल स्टोरी का था। तो उस लिहाज के उस ज़माने में हमने जो प्राइस दी है वो समझ लो कि आज की प्राइस से समझ लो कि वो 700 गुना कम है। वाह। अच्छा सर, ये बताएं कि यहाँ जो अब माशाल्लाह आबादी आ रही है, लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं,
ہم جس پارک میں موجود ہیں یہاں سراؤنڈنگ میں لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو نیا ناظم آباد کیا فیسلٹیز پرووائڈ کر رہا ہے اپنے الاٹیز کو؟ دیکھیے جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ اس زمانے میں ہماری سوچ تھی کہ یہاں اے کیٹیگری یا بی کیٹیگری کے لوگ نہیں آئیں گے. ہم سمجھ رہے تھے کہ یہاں سی کیٹیگری کے لوگ آئیں گے، مگر بعد میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کی مہربانی سے یہاں ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ رہتے ہیں، ماشاءاللہ A1 لوگ رہتے ہیں. اب ہم نے جو 4-5 فیسلٹی اس وقت کی ہوئی ہے، سب سے پہلے ہم نے ایک کانسیپٹ بنایا کہ یہاں ہمارے عارف حبیب صاحب جو کرکٹ میں بہت ہی زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں اور ان کی خواہش تھی کہ پہلے ہم کرکٹ گراؤنڈ بنائیں. تو فرسٹلی ہم نے کرکٹ گراؤنڈ بنایا. اس میں اللہ کی مہربانی سے ہم نے پوری پاکستان کی ٹیموں کو یہاں بلایا اور ان کو میچ کھلائے. اس کے بعد سیکنڈ اسٹیج پہ ہم نے کرکٹ گراؤنڈ کے ساتھ نیا ناظم آباد جیم خانہ بنایا. انشاءاللہ اللہ میاں کی مہربانی سے وہ جیم خانہ 6-8 مہینے میں کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کی سائڈ میں ہم نے ایک نیا ناظم آباد ہوٹل بنائی ہوئی ہے جو 51 کمرہ سمجھ لو ایک ہوٹل ہے. تو ماشاءاللہ یہ 3 چیزیں تو یہاں بنائی. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہمارے پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے ماشاءاللہ کہ یہ جو مسجد ہم نے بنائی ہے اللہ کی مہربانی سے، اس مسجد میں ایک ساتھ 10,000 نمازیوں کی نماز پڑھنے کی گنجائش ہے. دوسری 2 مسجدیں ہم نے بنائی ہے، ایک سی میں بنائی ہے اور ایک ڈی بلاک میں بنائی ہے. ماشاءاللہ اس میں بھی 500 سے 600 لوگوں کی نماز پڑھنے کی گنجائش ہے. اور اب تیسری ایک مسجد ہم نے عقیل ریڈی صاحب کو ایک پلاٹ الاٹ کیا ہے اور انشاءاللہ ایم بلاک میں وہ اپنی ایک مسجد بنائیں گے اور انشاءاللہ اس کی بھی اوپننگ within 1 month ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا سر، میں نے دیکھا کہ ابھی ماشاءاللہ سے یہاں پہ جو ہے وہ پلاٹس اور بنگلوز کے علاوہ آپ لوگوں نے بلڈنگ کے پروجیکٹس بھی لانچ کر دیے ہیں، تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں ذرا بتائیے. دیکھیے آج سے نومبر 2000 میں نومبر 2021 میں ہم نے بلڈنگ کا پروجیکٹ مطلب فلیٹ کا پروجیکٹ شروع کیا. ماشاءاللہ ہم نے 9 بلاک کی اوپننگ کی ہے اور اس میں 1023 پلاٹ ہے اور اللہ کی مہربانی سے آج ہمارے پاس 911 فلیٹ کی بکنگ ہو گئی ہے. اور پہلے ہم نے 10,000 روپے اسکوائر فٹ میں بک کیا تھا اور آج اللہ کی مہربانی سے ہم 12,000 روپے اسکوائر فٹ میں فلیٹ بک کر رہے ہیں. اور اس فلیٹ کی سائز ہے 1250 اسکوائر فٹ اور بڑا فلیٹ ہے 1750 اسکوائر فٹ. اچھا سر، آپ جیسے یہاں ماشاءاللہ آبادی دیکھ رہے ہیں، آپ نے چیزیں بتائی ہیں، نئے ایفلس لانچ ہو گئے ہیں، تو جو نیا ناظم آباد کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں ہمیں کہ وہ کیسا ہے. دیکھیے جیسے آپ نے دیکھا کہ انفراسٹرکچر کے پیچھے ہم نے کافی پیسے خرچ کیے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے پورے ایریا کو ڈیولپ کیا ہے. اب ہمارا آخری فیز پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ایم اور این بلاک بھی ڈیولپ ہو رہا ہے اور ہم سمجھ لو کہ within 6 month اس کا بھی پوزیشن within 6 month دے دیں گے. تو وہ ہمیں کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے. ہم نے کافی خرچ کیا ہے، جس طرح سیکیورٹی پہ بھی اور اسی جیسے آپ نے جو سوال کیا اسی پہ بھی ہم نے کافی پیسے خرچ کیے ہیں. اسی وجہ سے تو یہاں ویلیو بنی ہے. اچھا سر، یہ دیکھا گیا ہے کہ 2 سال پہلے جو بارشیں ہوئی تھیں اور وہ بڑی ریکارڈ بارشیں تھیں، تو اس وقت یہاں پہ جو رہائشی ہیں ان کو بڑی تکلیف فیس کرنی پڑی تھی کہ پانی گھروں تک میں بھر گیا تھا. تو اس میں آپ نے ایسا کیا کیا ماشاءاللہ سے کہ آج جس سال میں ہم بیٹھے ہیں تو اس وقت اس جو ریکارڈ بارشیں تھی اس سے زیادہ بارشیں اس سال ہوئی ہے، لیکن الحمدللہ کہ ادھر کہیں کوئی ایسی ایک نیوز بھی نہیں آئی، کیونکہ پچھلی دفعہ تو بڑے میڈیا نے بھی اس کو کور کیا تھا، لیکن اس دفعہ ایک نیوز ایسی نہیں آئی کہ یہاں پہ کہیں پانی بھرا ہو یا کسی کو کوئی تکلیف ہوئی ہو. تو ایسا کیا ہوا؟ دیکھیے جیسے آپ نے کہا کہ 2 سال پہلے بارش آئی تھی، نو ڈاؤٹ کہ 2-2.5 سال پہلے کراچی میں بہت ہی زیادہ بارش آئی تھی اور ہم نے جو یہ پروجیکٹ کو شروع کیا 2012 میں، تو ہم نے تو اپنی پوری سوچ کے مطابق جو بھی سسٹم کرنی تھی پروجیکٹ کے ڈیولپمنٹ کے لیے وہ ہم نے بالکل صحیح بنائی ہوئی تھی. مگر بارش اتنی آئی کہ وہ تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ ہم بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ بارش اتنی زیادہ کیسے آ جائے گی. وہ تو کسی کو بھی پاکستانی کو پتہ نہیں، تو رب جانتا تھا کتنی بارش آ جائے گی. تو وہ بارش آئی اور آپ نے جو کہا میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو تکلیف ہوئی اور لوگوں نے سی بلاک میں، ڈی بلاک میں اور کچھ حصہ بی بلاک میں ان کو زیادہ تکلیف ہوئی اور ہم نے لوگوں کو بھی سنبھالا اور پانی بھی اس زمانے میں نکالا. اور پھر ہم نے مینجمنٹ نے جو کمپنی کے بورڈ نے ایک پالیسی بنائی کہ اللہ نہ کرے دوسری بار بارش آ جائے تو ہمارا کیا ہوگا،
क्योंकि हम तो प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में हमारा भी इन्वेस्टमेंट था और हमारे इन्वेस्टर भी हमारे साथ थे। तो माशाअल्लाह हमने अभी जो चेंजेस की उसमें हमने काफ़ी रकम लगाई और काफ़ी खर्च किया। और जैसे आपने कहा कि इस साल अभी जो बारिश हुई है, आज हम बैठे हुए हैं जो यहाँ 26 अगस्त या 27 अगस्त है, तो आपने जो बारिश हुई है उससे ज़्यादा बारिश हुई है। और अल्लाह की मेहरबानी से कोई लोग कंप्लेन नहीं कर रहे, बल्कि लोग तो ये कहते हैं कि डिफेंस में फेज़ 4 में फेज़ 6 में इसमें पानी भर गया। आप तो जाके नया नाज़माबाद वाले से डिफेंस वालों को लोग कहते हैं कि वहाँ से आप एक्सपीरियंस लो। अच्छा सर, अब ये बताएं, जैसे अभी हम आ रहे थे नया नाज़माबाद की तरफ, तो रास्ते में फ्लाईओवर का काम हमने देखा है कि हो रहा है। आपका प्रोजेक्ट काफ़ी ड्यू था ये फ्लाईओवर, जो कि अब स्टार्ट हुआ है, तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा यहाँ के अलॉटीज़ पे और फ्यूचर जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं नया नाज़माबाद में, तो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा इसका? जैसे आपने फ्लाईओवर की बात की ना, तो फ्लाईओवर का जो हमारा प्रोजेक्ट था वो पहले फर्स्ट डे से हमारी सोच थी। और फ्लाईओवर के सराउंडिंग में जो भी दुकानें आती थी वो भी हमने काफ़ी दुकानें खरीदी और उस दुकानों को भी हमने पीछे करवाया है। आपने देखा होगा कि वहाँ माशाल्लाह एक बहुत बड़ी मस्जिद बनी हुई है, उस मस्जिद को भी हमने डेवलप किया। एक छोटी मस्जिद बनी हुई है, उसको भी हमने बीच में थी, उसको भी चेंज करके सामने की साइड पे डेवलप किया। तो फ्लाईओवर हमारी सोच में था और अल्लाह की मेहरबानी से फ्लाईओवर का काम 6 महीने से 4 महीने से शुरू है। और माशाल्लाह आज भी आप जाके देखेंगे तो फ्लाईओवर में काफ़ी काम हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि 2023 की एंड तक ये फ्लाईओवर कंप्लीट हो जाएगा। और फ्लाईओवर का अनाउंसमेंट होते ही लोगों ने नया नाज़माबाद में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया और नया नाज़माबाद के प्लॉट के ऑटोमेटिकली 10-10 लाख रुपए प्लॉट के बढ़ गए। और इंशाल्लाह फ्लाईओवर कंप्लीट हो जाएगा तो और लोगों को भी बेनिफिट होगा और हमें भी बेनिफिट होगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, बेसिक फैसिलिटीज़ की बात करें तो अभी यहाँ पे जो बिजली है वो किस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं और क्या सोलर को भी एनकरेज कर रहे हैं? देखिए अभी हमारे यहाँ माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने सोलर लगाया है। हमने सोलर लगाने पे कोई पाबंदी नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, आप अपना किसी भी कंपनी से आप अपना सोलर लगाएं। इस वक्त हमारे पास KEC की इलेक्ट्रिसिटी है और हमने लोगों को सब मीटर दिए हुए हैं और सब मीटर का जो भी बिल हमें आता है वो हमारे सेल ऑफिस में वो जमा करते हैं और कंपनी KEC को बिल फुल पेमेंट करती है। इंशाल्लाह अभी सब मीटर के साथ KEC से इंडिविजुअल मीटर भी हमारा अरेंजमेंट हो गया है और लोगों को हम इंडिविजुअल मीटर भी दे देंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, पानी की बात करी जाए, क्योंकि पानी जो है वो हमारे यहाँ कराची के बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें इवन मैं अगर बात करूँ तो डिफेंस और क्लिफ्टन की भी बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे पानी की बड़ी किल्लत है। तो यहाँ पे आप लोगों क्या पानी का निज़ाम किस किस्म का है? देखिए जैसे डिफेंस में तो आप कहते हैं ना कि पानी डिफेंस में लोग रहते तो है मगर पानी वहाँ ख़रीदना पड़ता है। अब हमारे यहाँ जैसे आपने पानी की बात की ना, तो माशाल्लाह हब डैम हमारे नज़दीक है और हमारे यहाँ अंडरग्राउंड में भी काफ़ी पानी है। तो हम मतलब समझ लें कि अंडरग्राउंड से भी पानी पुल करते हैं और हमने एक टैंकें बनाई हुई है और हम पानी इनको सप्लाई करते हैं। आपने देखा होगा, आप मीडिया वाले लोग हैं, आपको पता है कि नया नाज़मा में इस वक्त तक पानी की कोई शिकायत नहीं है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, माशाल्लाह ये तो बताया कि आप लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक भी आ गई है, पानी का भी तरसीब बहुत अच्छी है और दो सोलर को भी इनकरेज कर रहे हैं। तो यहाँ अभी कितने ब्लॉक्स हैं आपके और कितनी आबादी है तकरीबन वहाँ पे? देखिए इस वक्त जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि इधर 2560 घर तो हमने बनाए थे, जिसमें आज 560 में से मेरे हिसाब से 540 लोग आबाद हैं। और दूसरे C, D और A ब्लॉक में अभी हमने पॉलिसी चेंज कर दी है। C, D और A ब्लॉक में लोग अपने अपने प्लॉट से अपने अपने ठेकेदार से वो घर बनाते हैं, मगर कंडीशन ये है कि घर के बाहर का हिस्सा एज इट इज़ वेयर इट इज़ होगा। अंदर आप छोटा कमरा बनाएं, बड़ा कमरा बनाएं, उसका नक्शे पे हम स्टैम्प लगाते हैं और फिर जाके हायर अथॉरिटी से वो नक्शा पास होता है, वो फिर ही घर बना सकते हैं। और हमारी वॉच टीम भी है, वो देखती भी रहती है कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब उसके ऊपर भी हम लोगों को पकड़ते हैं कि आपने ये क्या किया है। गुड, ज़बरदस्त। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि 24 आवर्स जहाँ तक मेरी नॉलेज में है कि यहाँ पे पेट्रोलिंग होती रहती है और गेटेड सिक्योरिटी भी बड़ी इधर बहुत अच्छी आप लोगों ने रखी हुई है।
तो इस हवाले से थोड़ा सा हमें ब्रीफ करिएगा ज़रा। देखिए, सिक्योरिटी के लिहाज से हमें बच्चों के भी प्रॉब्लम आते थे कि इन लोगों को, हम जो हमारे यहाँ आबाद हैं, इन लोगों को कहते थे कि आप छोटे छोटे बच्चों को ना स्कूटर चलाने दे, ना गाड़ी चलाने दे, तो एक दो हादसे हमारे एक्सीडेंट के भी हुए। अब ये है कि जो और सिक्योरिटी है, हमने एक सिक्योरिटी कंपनी को हायर किया हुआ है और माशाल्लाह वो 24 आवर्स सिक्योरिटी कर रही है और उसमें भी 100 से 150 लोग इस सिक्योरिटी में लगे हुए हैं। अच्छा सर, एक चीज़ मैंने अभी सुनी थी यहाँ पे कि यहाँ पे आप फ्री रिक्शा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं नया नाज़माबाद, क्या है ये ज़रा बताएंगे? देखिए, गनी उस्मान रियल एस्टेट मार्केट एंड बिल्डर्स ने पहले यहाँ पहला ब्रोकरेज हाउस खोला। सही। लोग कहते थे कि भाई आप मालिक है या ब्रोकर है, तो मैं कहता था लोगों को कि हम दोनों हैं, क्योंकि हम पैदाइशी तो छोटों से ऊपर आए, तो हमें आज भी लोग वही समझते हैं कि हम मालिक नहीं, हम यहाँ के खाली ब्रोकर हैं, तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम ब्रोकर है। तो मेरे ख्याल में रिक्शा सर्विस में तकलीफ ये थी कि यहाँ जो लेडीज़ एम्प्लॉई है ना, लेडीज़ एम्प्लॉई या मजदूर जो काम करने के लिए आते थे, वो सराउंडिंग के बैकवर्ड आबादियों से आते हैं, और वो गेट के लाल गेट और दूसरे जो एक गेट है, वो गेट के अंदर आने में 1.5-2 किलोमीटर उनको अंदर जाने की तकलीफ़ होती थी। तो हमने यहाँ रिक्शा सर्विस शुरू की है स्पेशली गनी उस्मान रियल एस्टेट ने, और उस रिक्शे में 3-4 हमने स्टॉप बनाए हुए हैं और वहाँ से हम फ्री में उन लोगों को बिठाते हैं। माशाल्लाह। अच्छा सर, फ्यूचर प्लान्स ये तो हो गए कि क्या पास था क्या प्रेजेंट है, माशाल्लाह प्रेजेंट तो सब देख सकते हैं, आप लोग की इसमें फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? देखिए फ्यूचर प्लान में यहाँ सबसे बड़ा सुपर मार्केट, जैसे आप डोलमिन माल देखते हैं, डोलमिन माल के भी हमारे पार्टनर आरिफ हबीब ने और फिरोज गिट्टू साहब ने बनाया, और उस माल को आपने देखा होगा कि पाकिस्तान का नंबर 1-2 मॉल में है। जैसे आपने लकी माल देखा, आपने ओशियन माल देखा, तो और जैसे आपने पंजाब में पैकेजिस माल देखा है, तो हमारी उम्मीद, हमारी ख्वाहिश है कि हम यहाँ ऐसा पाकिस्तान का टॉप माल बनाएं कि डिफेंस, क्लिफ्टन और कराची के जो हायर जो बड़े बड़े लोग हैं उस माल में परचेस करने के लिए आए। तो हमारा ये फ्यूचर का बहुत ही बड़ा प्लान है। माशाल्लाह अभी नाज़माबाद में आपने देखे कि मैरिज हॉल की एक मार्केट बनी हुई है, तो हम चाह रहे हैं कि हम यहाँ 4-6 A1 मैरिज हॉल बनाएं और आने वाले वक्त में यहीं लोग अपना मैरिज हॉल भी यहीं हो, मतलब कि अपना शादी ब्याह का प्रोग्राम भी अंदर कर सकते हैं। हमने इसीलिए होटल बनाई है कि अगर जो आपके कोई गेस्ट आते हैं तो आपको वहाँ आराम से रुकवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ हर सूबे के लोग रहते हैं। यहाँ कोई बाइफरकेशन नहीं है कि मेमन रहेगा, सिंधी रहेगा, बलूची रहेगा, पठान रहेगा, कोई भी है, इंसान है, वो आबाद होगा, सब मिल के रहेंगे। हाँ, सब मिल के रहेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि नया नाज़माबाद में एंट्री एंड एग्ज़िट पॉइंट्स कितने हैं हमारे पास, और दूसरा इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि जो यहाँ आना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं, उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए, इस वक्त हमारे एंट्री पॉइंट में इस वक्त जो लोग आते हैं ना, वो 2 एंट्री पॉइंट है, और तीसरा एक एंट्री पॉइंट बना हुआ है, उसमें अभी हमने अलाउ नहीं किया। और आने वाले वक्त में इस प्रोजेक्ट में जहाँ तक मुझे लगता है कि 10 से 15 एंट्री पॉइंट होंगे, क्योंकि इतने सारे लोग आबाद होंगे, तो एक ही एंट्री पॉइंट से इन आउट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जैसे अभी आपने कहा कि फ्यूचर के बारे में, जैसे कि जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उनके फ्यूचर के बारे में आप यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज से जैसे 2 साल आगे हमारे यहाँ जो प्लॉटों की प्राइस थी और आज की प्राइस को आप कंपैरिजन कर लें, और माशाल्लाह आप सराउंडिंग एरिया में भी देखें, नाज़माबाद में आप जाएंगे और ये बारिश आई है तो आपने नाज़माबाद का इलाका भी, पुराना नाज़माबाद का इलाका भी देखा होगा और हमारा इलाका भी देखा, तो आप खुद सोच सकते हैं कि फ्यूचर में जहाँ तक मेरी नॉलेज में है कि नाज़माबाद के लोग अपने घर बेच के नया नाज़माबाद में आ रहे हैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह। अच्छा सर, देखा गया है कि हमारे यहाँ अमूमन ये होता है कि आप माशाल्लाह इतने बड़े ब्रोकर थे और आप नए नाज़माबाद के समझे ओनर हैं, तो आपने जो है वो मोनोपली क्यों नहीं वाला जो है वो रास्ता अपनाया है? क्योंकि हमारे यहाँ तो अमूमन देखा गया है जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब आपका प्रोजेक्ट था, आप ही इसको ओन करते, आप ही इसमें ब्रोकरी करते, तो हमने जो देखा है कि अंदर भी ब्रोकर्स बैठे हुए और बाहर भी ब्रोकर्स आप लोगों के अलावा बैठे हुए, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, आज से 5 साल पहले मैंने कॉन्सेप्ट किया कि लोग नया नाज़माबाद में प्लॉट बेचने के लेने के लिए आते हैं, तो उनको प्राइस का पता ही नहीं होता था कि भाई आज की तारीख का क्या प्राइस है।
तो हमने कॉन्सेप्ट किया कि यहाँ एक ब्रोकरेज हाउस, सेल ऑफिस के सिवा एक ब्रोकरेज हाउस बनना चाहिए। हमने 2-2.5 साल उस ब्रोकरेज हाउस को 5 साल पहले चलाया। फिर दूसरे लोग भी इंटरेस्टेड हुए कि भाई हम भी अपना ब्रोकरेज हाउस खोलें। तो हमारी पॉलिसी में, हमारी कंपनी की पॉलिसी में है कि जितने हायर ज़्यादा ब्रोकरेज हाउस होंगे इतना बिजनेस ज़्यादा होगा और इन्वेस्टर को कंपटीशन भी मिलेगी और इन्वेस्टर्स के साथ नाइंसाफ़ी भी नहीं होगी। तो मेरी तो हमेशा पॉलिसी है, मैं आज से पहले 40 साल पहले रियल प्राइस बॉन्ड का काम करता था या जो भी काम करता था, तो मैं कह रहा था कि मेरे बाजू में 4 दुकानें खोल दो तो मैं सही सर्विस दूंगा तो मेरा आपसे डबल धंधा ही चलेगा। सही। गुड। अच्छा जी, उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। जो इन्फॉर्मेशन हमें अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब ने प्रोवाइड की है वो यकीनन आपके काम आने वाली है। और एक और बात, चूँकि ऑफ द कैमरा जब हमारी गनी साहब से बात हुई, हाजी साहब से बात हुई, तो माशाल्लाह जो इनकी लाइफ है वो इतनी अमेजिंग है और इतनी हैपनिंग है और इतनी स्ट्रगलिंग लाइफ है। जो सक्सेस आज हम देखते हैं कि नए नाज़िमाबाद के ओनर हैं तो एकदम से तो बने नहीं है, कई सालों की हिस्ट्री है, डेकेड्स की हिस्ट्री है, तो उसको भी कवर करने जा रहे हैं। इनके जो पीयर्स थे, जो इनके काउंटर पार्ट्स थे, जो इनके रोड पे जो इनके जो साथी थे, उनके साथ एक सेशन होगा इंशाल्लाह ताला अनकरीब, उसकी भी डेट अनाउंस करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है काइंडली बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।